Hello students, this is Rajiv Atri. In this video we will discuss another application of Gauss law, application number 4. Electric field due to a uniformly charged infinite sheet. Just because of the sheet is infinite, we cannot make the length portion of the sheet. As the sheet is uniformly charged, so let us consider this sheet is positive charged. Also, we have to conclude a charge distribution. Let us, this is a sigma. Sigma is charge distribution constant. Surface charge distribution constant. Charge distribution constant. Q. Q is the total charge on the sheet. सबसे पहला काम है हमारा किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अभी तक हमने सबसे फर्स्ट जो स्टेप किया है वो गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस बनाने का किया है। गॉसियन सरफेस क्या होता है पहले भी बता चुका हूँ। गॉसियन सरफेस सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेजर करने के लिए हम इमेजिन करते हैं एक वर्चुअल सा सरफेस होता है जिस सरफेस में डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेजर की जाती है। जैसे कि लेट अस कंसीडर दिस इज अ शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, एंड इन दिस शीट बोथ surfaces are uniformly charged, so electric field always move away. As I take a positive charge, so electric field always moves away in perpendicular manner both of the direction of the sheet. So at each point a cylindrical surface we have to consider. Just because of sheet is infinite, so any type of Gaussian surface was failed to enclosed whole sheet. So first of all we have to consider a surface ds having ds या a मैंने इसका एरिया कंसिडर किया है बिकॉज मैं इसका पैटर्न निकाल पाऊंगा। सेम पैटर्न पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। सो ओनली इस पैटर्न के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेरी कर रही है विद डिस्टेंस, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होल शीट के लिए वेरी करेगी विद डिस्टेंस। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस circular part A. Now we have to make a Gaussian surface applicable for this sheet of area A. So students, as we know electric field are perpendicular, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है perpendicular इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए एक सिलेंड्रिकल Gaussian सरफेस बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट निकालने के लिए ठीक होगा। बोथ साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिकॉज कैसी है, चार्ज्ड शीट के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो मैंने कंसीडर कर लिया है एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। हाँ, दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस विल मेक सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन बोथ direction. So first of all we have to consider small surface area ds at each point, each surface. As we know cylinder has three surface, two are circular and third are curved surface area. ds area vector on each face, n cap ds area vector, and in curved surface area we will make this here n cap ds. So electric field line at both the circular region are perpendicular and parallel to the n cap ds. N cap ds means area vector. In both circular region it was parallel
to the area vector. That's why the angle between electric field and area vector is 0 degree for both the circular edge, circular faces, but this is 90 degree for the curved surface area. Theta is equal to 90 degree. Let us consider surface S1, surface S2, surface S3. S3 and S1 are circular areas, S2 are curved area. So this is our Hall geometry to find electric field line due to this Hall sheet. So first of all, जैसे कि हम हर एक एप्लीकेशन में करते आए हैं, दो इक्वेशन निकालेंगे. एक इक्वेशन होगी बाय डेफिनेशन, एक इक्वेशन होगी गॉस लॉ. उन दोनों को इक्वेट कर देंगे लास्ट में जाके. सेम ऐसा ही यहां पे करना है. बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डेफिनेशन हमने क्या निकाल रखी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, पाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस एन कैप. डॉट हटता है तो कोस थीटा आता है ऑब्वियसली, बट बिकॉज तीन सरफेस है तो हम क्या करेंगे, तीनों सरफेस ई डी एस कॉस 0 डिग्री किसके लिए था, S1 के लिए था. ई डी एस कॉस 90 डिग्री किसके लिए था, S2 सरफेस के लिए था. ई डी एस कॉस 0 डिग्री किसके लिए था, अगेन S3. एंड बिकॉज फ्लक्स इज a scalar quantity, that's why we will add up all these flux for the all three surface areas. And as we know cos 90 is 0, that's why this whole quantity will 0. E ds का इंटीग्रेशन प्लस S1 के अलोंग, E ds का इंटीग्रेशन S3 के अलोंग. As we know ds is a small surface area and after integration it will make whole surface area, it will cover whole surface area, and on both sides, as we consider A is a surface area of this circle, so same area will applicable for this circle and this circle. हाँ, तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो E into A plus E into A कितना बनेगा, 2EA is equal to flux. This is the flux by definition of electric flux. Now we have to find another equation by Gauss law. इसको अभी रहने देते हैं, इक्वेट करने के काम आएगा बाय गॉस लॉ. गॉस लॉ के बेसिस पे हम फ्लक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. एंड हमें कभी भी Q इनक्लोज निकालना हो फॉर ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कांस्टेंट हमने याद रखा है उसकी हेल्प जरूर लेंगे. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट अभी सिग्मा काम आएगा. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया. जैसा कि हमें पता है एरिया हमने A कंसीडर किया है, Q इज इक्वल टू A इंटू सिग्मा. ये Q यहाँ पे पुट करेंगे तो सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द फ्लक्स विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ. एंड फ्रॉम 1 and 2 दोनों को इक्वेट करेंगे. इक्वेट आफ्टर इक्वेट दोनों को इक्वेट करिए. इक्वेट करने के बाद फ्रॉम 1 and 2 एक का तो है 2EA, एक की राइट हैंड साइड में है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट. A से A कैंसिल, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए शीट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट. याद रहे शीट वॉज थिन. और जैसा कि हमें एक और चीज दिख रही है, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो ए कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांस्टेंट ही रहेगी. किसके लिए, शीट के लिए. कहीं पे भी मेजर कर लो, शीट पे, शीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांस्टेंट.
यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो सिग्मा एंड एप्सिलॉन नॉट वाज constants, hence electric field line due to thin sheet was also constant. अब लास्ट में हम एट लास्ट क्या बनाते थे, ई और आर के बीच में ग्राफ बनाते थे। इसका ग्राफ भी ऐसा ही सिंपल सा ग्राफ बनेगा। इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, इस साइड आर, जैसा कि हमें पता है आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही, फॉर्मूले में आर कहीं पे आया ही नहीं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन बनाएगी और ये पॉइंट क्या है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पे इसी से पता चलेगा एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट डिपेंड ऑन आर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी एप्लीकेशन नंबर 4 कंप्लीट। गॉस थ्योरम यहाँ से कंप्लीट होती है। गॉस लॉ की चारों एप्लीकेशन करी हमने। वीडियो का अगर कंटेंट समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।